Very good morning, everyone. In this video, I am going to discuss some of the regulatory authorities across the globe. As earlier, I have discussed about how to conduct a in vitro studies, how to conduct a animal experimentations, what points you have to be considered to get a approval from Institutional Animal Ethics Committee. So I am just giving one hypothetical example. Suppose you have conducted your in vitro and animal experimentations uh, not as per the regulatory authority guidelines. So there is a maximum chances you will not get a approval to conduct a clinical trial, or you will get a number of queries from the regulatory authorities, and you might be will not able to answer all the queries, and you end up with not getting a approval to conduct a clinical trial. So the sponsor or pharmaceutical industries, whatever who are putting money in the new chemical entities, always conducting their animal experimentations, their in vitro studies, that is we call preclinical studies, as per the regulatory guidelines. So these are some of the regulatory guidelines across the globe. FDA is the Food and Drug Administration of US. OECD is international organizations for economic corporations and development. MHRA is Medicines and Healthcare Regulatory Agency of UK. TGA, Therapeutic Good Administrations of Australia. EMEA is the European Medicine Agency of EU. MHLW is your Ministry of Health and Labor Welfare of Japan. ANVISA is for Brazil. Uh, in India, the regulatory authorities or Central Licensing Authority, that is CLA, it's CDSCO, Central Drug Standard Control Organization, whose main head office is in New Delhi. So in schedule by earlier, it has been mentioned what data is required when we are submitting the IND application to the CDSCO to get a approval to conduct a clinical trial. But now this schedule by is replaced with NDCT. This is the New Drugs Clinical Trial Rules 2019. So in these rules, New Drugs Clinical Trial Rule, it has been mentioned what toxicity study is required if you want to start a phase 1 clinical trial in India, what animal pharmacology study is required, and apart from these studies, what other information is required. It's not only about efficacy and safety data, but apart from efficacy and safety data, you have to submit the information related to the manufacturing process, related to chemistry, related to formulation, related to regulatory status of that molecule in other countries, your license approval for the manufacturing of that product. So all these informations you have to be submit to the CDSCO if you want to conduct a clinical trial. So if you see, these all are the regulatory, some of the regulatory agencies across the globe. So every country has its own regulations uh, and requirement, and it's very difficult for sponsor to conduct the studies as per every regulatory authority guidelines of the country where they would like to market their product. So there is a concept of ICH has been formulated, and this is an international conference on harmonizations earlier in 1990. This conference has been conducted to harmonize the process, and founder member of ICH is your European Union, US, and your Japan. The reason is because most of the new chemical entities are discovered from these EU countries or US FTA or Japan. So they sit together and harmonize the process and come up with a different guidelines for safety, efficacy, quality, and one section is for multidisciplinary. So this ICH is major objective is to reduce the duplication of the work, to harmonize the process, so it will reduce the time as well as the money which is involved in drug development process. So these ICH and schedule by we will study much more detail in others further lectures. If I explain in Hindi little bit, हम लोगों ने जो मैंने डिस्कस किया कि पहले हमने क्या पढ़ा कि हमें जब हम न्यू केमिकल एंटिटी डिस्कवर करते हैं, डेवलपमेंट में हमारा सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि डेवलपमेंट में आपने इन विट्रो स्टडीज़ की, इन विवो स्टडीज़ की, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की,
तो उसमें आपने सेफ्टी और एफिकेसी दोनों चीजें कर ली। पर आपने क्या किया कि आईएसी से अप्रूवल ले लिया। आईएसी जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी है वो कभी ये क्वेश्चन नहीं करेगी आपके पुटअप कि भाई आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर रहे हो या नहीं। उसका कंसर्न हमेशा ये रहता है कि आप इथिक्स फॉलो कर रहे हो, एनिमल इथिक्स रिसर्च में अपनी या नहीं, एनिमल्स को हार्म तो नहीं हो रहा है, एनिमल्स को कैसे डोज दोगे, कितना दोगे, कैसे सेक्रीफाई करोगे, ये सारे कंसर्न आपके आईएसी के हो। पर आईएसी को कोई लेना देना नहीं है, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग करो ना करो, वो आपका प्रोटोकॉल अप्रूव कर देगी। आपका प्रोटोकॉल अप्रूव हो गया, आपने प्रोटोकॉल कर लिया, पर आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली नहीं किया कि हमें सिंगल डोज टॉक्सिसिटी, रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी में इतनी डोज देनी थी, इतने एनिमल रखने थे, रोडेंट रखने थे, नॉन रोडेंट रखने थे, नहीं रखने थे। अब आपने डाटा जो भी जनरेट किया उन स्टडी से वो सबमिट कर दिया, क्योंकि आपको इसके बाद अगला स्टेप क्या है, आपको वो अब जो न्यू केमिकल एंटिटी है वो आपको टेस्ट करनी है ह्यूमन में, क्लिनिकल ट्रायल में। तो क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जहां भी करनी है। तो आपने क्या किया, डाटा सबमिट कर दिया। आप रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग स्टडी तो की नहीं, ना आपने टॉक्सिसिटी स्टडी की, ना सिर्फ ये आपकी एफिकेसी की। तो अब रेगुलेटरी अथॉरिटी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो आईएनडी है वो रिजेक्ट कर देंगे, या आपसे पूछेगी कि भाई ये करके दो। आपने बोला हमने रोडेंट पे किया था रिपीटेड डोज, नॉन रोडेंट पे तो किया नहीं, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलेगी नॉन रोडेंट पे भी हमारी रिक्वायरमेंट है, करके दो। आपने बोला कि हमने तो डोज इतनी ली थी और इस डोज पे किया था, रेगुलेटरी अथॉरिटी बोले नहीं इस डोज पे नहीं, इस डोज पे भी करके दिखाओ हमें। तो ये आपको पता होगा कि हम जो है हमेशा, जो स्पॉन्सर होता है वो इतना बेवकूफ तो है नहीं कि उसने सारी स्टडी कर ली और रेगुलेटरी अथॉरिटी की गाइडलाइन ही नहीं देखी। तो जो भी स्टडीज होती हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जब हम डेवलप करते हैं न्यू केमिकल एंटिटी, वो उसको ध्यान रखते हुए ही हम करते हैं। तो ये कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं अक्रॉस द ग्लोब। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की है, ओईसीडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जो आपने सेपरेट लेक्चर इसके ऊपर है आपका। एमएचआरए है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी, ये यूके की है। टीजीए थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ईएमईए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ये आपकी ईयू की है। एनवीजा ब्राजील की है। और इंडिया की कोई पूछे आपसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है जो कि आपके आईएनडी अप्रूव करेगी, एनडीए करेगी मार्केट के लिए, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए सेडेस्को, CDSCO। इज अ सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है, और आपको आईएनडी यहाँ जमा करना है। और जो भी आप स्टडीज करोगे वो इन्होंने सेडेस्को ने ये शेड्यूल बाई, पहले जो था शेड्यूल बाई में सारी चीजें लिखी थी कि आपको टॉक्सिसिटी स्टडी करनी है तो कौन से एनिमल लेने हैं, मेल लेने हैं, फीमेल फर्टिलिटी कब करनी है, कार्सिनोजेनेसिटी किस फेस के लिए चाहिए, म्यूटाजेनेसिटी किस फेस के लिए, इन विट्रो चाहिए किस फेस के लिए, इन विवो चाहिए। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर इसी शेड्यूल बाई को मॉडिफाई किया गया, तो ये अब रिप्लेस हुआ है जो हमारे नए जो न्यू ड्रग्स हैं क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको कौन सी स्टडीज करनी है, एनिमल फार्माकोलॉजी में आपको कौन कौन सी स्टडी करनी है, कौन कौन से पैरामीटर करने हैं, कितने एनिमल लेने हैं, मेल लेने हैं, फीमेल लेने हैं, रोडेंट लेने हैं, नॉन, सब कुछ लिखा हुआ है आईएनडी। ऐसे ही आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए लिखा है सारी चीजें कि इन्वेस्टिगेटर्स का रोल क्या है, क्या आपका स्पॉन्सर का है। तो अब क्या है, कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है कि अब आप प्रैक्टिकली देखो, ये तो कुछ ही कंट्रीज की मैंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज बताई। अब ऐसे तो हर कंट्री की अपनी अपनी रेगुलेटरी, चाइना वाले की अपनी है, उनकी अपनी है, इनकी अपनी है। तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, अब स्पॉन्सर सपोज मैं अपना न्यू केमिकल एंटिटी डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा चाहूंगा मॉलिक्यूल कि मेरा मॉलिक्यूल वर्ल्ड वाइड बिके और उसका डिजीज का बर्डन भी वर्ल्ड वाइड हो, और वर्ल्ड वाइड बिके तो मेरे को उतना ही प्रॉफिट होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब एक गाइडलाइन बोल रही है कि हमारे अकॉर्डिंग करो, दूसरी बोल रही है हमारे अकॉर्डिंग करो, तीसरी बोल रही है हमारे अकॉर्डिंग करो। तो इसके लिए आईसीएच बनी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, 1990 में फॉर्मुलेट हुई, इसी को रिजॉल्व करने के लिए कि जो भी डाटा जनरेट हो इन स्टडी से दैट विल बी म्यूचुअली एक्सेप्टेड। ऐसा ना हो कि मैं
इंडिया में कर लिया स्टडी, अब यूएस बोले नहीं, आपको अब हमारे अकॉर्डिंगली आप नॉन रोडेंट आपने तो 4 लिए थे, हमारे अकॉर्डिंग आप 6 लीजिए, तो आपको फिर स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अब तो इसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, पहले जब हुई थी, जब ये फॉर्मुलेट फाउंडिंग मेंबर जो है आपके आईसीएच के, यूरोपियन यूनियन है, यूएस एफडीए है और जापान, इन तीनों ने बैठ के ये हार्मोनाइज कर किया था कि जो भी हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, उसके लिए इन्होंने कम अप विद एक डिफरेंट गाइडलाइन, सेफ्टी की अलग गाइडलाइन कर ली, क्वालिटी की अलग कर ली, एफिकेसी की और मल्टी डिसिप्लिनरी। तो उसमें उन्होंने सेफ्टी की S1 S2, क्वालिटी की Q1 Q2 और एफिकेसी की E1 E2 E3, ऐसे करके इन्होंने डिफरेंट गाइडलाइन जनरेट की। और इन्होंने बोला कि अगर मान लो मैंने जापान में स्टडी की, जापान इसकी रेगुलेटरी आईसीएच के अकॉर्डिंग, तो वो डाटा एक्सेप्ट होगा आपका यूएस में भी, यूरोपियन यूनियन में भी। फिर उन्होंने लेटर 2005 में और कंट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया। अगर आप पूछें कि इंडिया क्या हमारा मेंबर है आईसीएच का, तो इंडिया हमारा अभी तक मेंबर नहीं है, फुल फ्लेज मेंबर इंडिया इज अभी नहीं बना है, पर इंडिया हमारा इसमें आईसीएच में ऑब्जर्वर भी होते हैं, तो उसमें इंडिया हमारा जो है वो ऑब्जर्वर है। तो आई होप सून इंडिया विल आल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ आईसीएच। और बीइंग ए ऑब्जर्वर, इंडिया को वोट करने का अधिकार नहीं है, वो वोटिंग नहीं कर सकता आईसीएच में। वो पार्ट करेगा कॉन्फ्रेंस, जो भी इनकी कॉन्फ्रेंस आईसीएच की मीटिंग होगी उनको अटेंड करेगा, पर बीइंग ए ऑब्जर्वर वो आपको वोट नहीं कर सकता, वो एक्सपर्ट मेंबर्स वगैरह को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आईसीएच पढ़ेंगे, शेड्यूल बाई भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली एनडीसीटी के अकॉर्डिंगली क्या रूल है, क्या चेंजेस हुए। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा, और जो प्री क्लिनिकल स्टडीज है ना, वो आपकी जीएलपी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।